We are recording this episode on a very auspicious day, Raksha Bandhan Day. So, wishing everybody a very happy Raksha Bandhan. And before we move on to the next episode, something came to my mind. Just a couple of things that I want to talk about our previous episodes. सबसे पहले there was a question that was asked about episode number 33 that we had done about the various types of malhars. And I was trying to reply to that comment on YouTube, but for some reason I could not do that. So I just thought we will use today's episode to answer that question. And the question was I had sung a composition, Bolere Papihara, in that episode when I sang Rag Miya Malhar. And in that there were names of Emperor Muhammad Shah Rangile and all that. So the question was it actually the name of the emperor or what? So the answer is yes, because the very famous composers of classical music, the two brothers Sadarang and Adarang, were supposed to be part of the court of the emperor Muhammad Shah Rangile, who was probably in the 17th century, right? So obviously, when they composed their compositions, they uh, composed it in his honor. Some of their compositions were in his honor, and that is why in some of their compositions you'll actually find his name, Muhammad Shah Rangile, and that is what happens in the composition Bolere Papihara, because there's a line that says Muhammad Shah Daminisi Kond Chond, right? So that is him, that is Muhammad Shah Rangile, emperor. So that, and then just a quick word about our previous episode that we did about India's Independence Day. In that I sang Jayostute, if you remember, the Marathi song. And in that, the last antara that I sang, I had inadvertently mentioned Malkauns, but it's actually Dhani, which of course I also talked about, but it is completely Dhani and not Malkauns. Sorry for that. And also I talked about a little bit of Bhairavi. So uh, uh, there is no Bhairavi in that also. So I think just in that mood, sometimes what happens is, when you're just in that fervor, you just kind of uh, get excited, and then when you see some similar notes, you actually think that they are those rags, but they are not. So it is totally based on Dhani, the last antara of Jayostute, and not Malkauns or Bhairavi. So just some of these corrections that I feel that are very important for me to talk about before we start the episode for today. Yeah. So अभी जैसे हर बार की तरह पंकज जी ने सवाल तो पूछा है राग के बारे में. So now you guys know that today we are definitely going to talk about a rag and not any theme. And so the rag that we're going to talk about today is a semi-classical rag, and a very interesting rag. Now this was supposed to have been created by Baba Alauddin Khan Sahab, who happens to be the guru of Pandit Ravi Shankar ji. And the name of this rag is also very interesting. It is called Manj Khamaj. So we are talking about Manj Khamaj. So we talked about Khamaj a few episodes back, in fact a long time back actually. I think it was episode 18, and today we are in episode 48. So that was a long time back. But so let's talk about the difference between Khamaj and Manj Khamaj. So let's just see how Khamaj goes first.
uh, as we know, uh, in Khamaj, the seventh note ni has two variants. While going up, it has the natural, the Shuddha ni. While coming down, it has the Komal ni, the flatter variation. So basically, Rag Khamaj would go like sa ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re sa. So that is Rag Khamaj. अच्छा, अभी मांझ खमाज में क्या होता है? Now, in Manj Khamaj, what happens is the fourth note of Khamaj, which is sa re ga ma ma, so sa ga. Oh, by the way, the second note re is absent when you go up in Rag Khamaj. So coming back to the fourth note in Khamaj, sa ga ma. So this is ma of Khamaj. Now when you take this ma as the base note, meaning you constantly keep halting on ma after you sing each and every phrase. Like just for an example, sa ga ma pa dha ni dha pa ma ga ma ga ma pa dha ni sa ni dha pa dha ni dha ma pa ma ga ma. So if you heard these phrases that I sang just now, I finished those phrases on ma. So which means my main halting point is ma. And this is what is Manj Khamaj. So basically the name is derived from the fact that you're halting on ma. यानी कि आप ma पे ma को आपने बेस नोट माना है कि जिस पे आप हमेशा आकर के रुक जाते हैं, राइट? सो उसकी वजह से इसको मांझ खमाज ऐसे कहा गया है, नाम इसका बनाया गया है. मांझ कमिंग फ्रॉम मध्यम एंड देन खमाज. सो मध्यम यानी कि म स्वर जिस खमाज के प्रकार में मुख्य हॉल्टिंग पॉइंट यानी कि बेस नोट या आधार स्वर हो जाता है, उस खमाज को मांझ खमाज बोलते हैं. So that is where the name comes from, right? So you will notice that every phrase that I sing in this rag always finishes on ma. So again, I'll just sing a couple more phrases ताकि वो बात और भी थोड़ी क्लियर हो जाए. So sa ga ma pa da ni dha pa ma ga ma ga ma pa dha ni sa pa ni sa re sa ni dha pa dha sa ni sa pa sa ni dha pa dha ni dha pa ma ga sa ga ma pa dha ni dha pa ma ga re ga ma. Right? So ये मांझ खमाज राग. तो इसमें एक छोटी सी ठुमरी. तो इसका जो मूड है, इसमें काफ़ी भक्ति भाव है एक्चुअली. तो उसमें भक्ति भाव है, बिनती है इस राग में, फिलोसॉफिकल इसमें मूड भी है, रोमांटिक मूड भी है. तो इन अलग अलग मूड्स को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे आज. सो लेट्स लिसन टू दिस शॉर्ट कॉम्पोजिशन लाइक अ सेमी क्लासिकल ठुमरी. इट्स कॉल्ड गोपाला
सुनो मोरी टेर, शरण तिहारी मैं बलिहारी, अब न करो, अब तो ना करो देर, गोपाला सुनो मोरी टेर. So re te re re la गोपाला गोपाला सुनो मोरी टेर, गोपाला सुनो मोरी टेर, गोपाला 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 सुनो मोरी टेर, शरण तिहारी मैं बलिहारी, शरण तिहारी मैं बलिहारी, शरण तिहारी मैं बलिहारी, अब ना करो, अब तो ना करो देर, अब तो ना करो देर, गोपाला सुनो मोरी टेर, गोपाला सुनो मोरी टेर. मन की किवड़िया खोल दियो है, मन की किवड़िया खोल दियो है, मन की किवड़िया, मन की किवड़िया खोल दियो है, 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 नाम की माला फेर, नाम की माला फेर, नाम की माला फेर, गोपाला सुनो मोरी टेर, गोपाला 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 गोपाला
गोपाला गोपाला सुनो मोरी टेर सुनो मोरी सुनो मोरी टेर गोपाला सुनो मोरी टेर सुनो मोरी टेर सुनो मोरी टेर Oh, very nice. Very soft and very melodious, soft. Yeah, like you said, Binti. Yeah. More, even more, uh, more on, क्या कहना जी चाहिए, बहुत simplified than even than केदार केदार में भी बिनती का भाव आता है, लेकिन इसमें और भी ज्यादा स्वीटनेस हाँ ज्यादा लगी है ना? हाँ मतलब इस नहीं और चूंकि ये सेमी क्लासिकल है ना तो इसमें हम हाँ और भी कई सारे स्वर मिक्स कर हाँ सकते हैं हाँ so that is the advantage of this rag so राइट हाँ so we talked about the devotional aspect of this uh, rag right so इसमें एक दो जो बहुत ही पॉपुलर भजन है एक तो जो बहुत पॉपुलर है भीमसेन जोशी जी का गाया हुआ संत तुलसीदास जी का जिसको शायद और भी लोगों ने अलग अलग ट्यून्स में गाया होगा बट द ट्यून इज एग्जैक्टली लाइक द कॉम्पोजिशन दैट आई sang just now रघुवर तुमको मेरी लाज गम पधनि सा नि ध प म ग म देखिए माँ पे आके रुक गए सदा सदा मैं शरण तिहारी सदा सदा मैं शरण तिहारी तुम हो गरीब निवाज तुम हो गरीब निवाज तुमको मेरी लाज रघुवर तुमको मेरी लाज ये इसका भक्ति भाव है ना एंड दूसरा एक जगजीत जी का एक जो उनकी एल्बम आई थी माँ उसमें इसी तरह का एक गाना है और वो कैसा है धधनी धपम गम रे गम मेरा जीवन तेरी शरण ओ मेरा जीवन तेरी शरण सारे राग विराग हुए अब मोह सारे त्याग हुए अब एक यही मेरा बंधन मेरा जीवन तेरी शरण मेरा जीवन तेरी शरण जी देखिए ये इसका एक भक्ति गीत जो हमने गाया अभी तो ये भक्ति भाव जो इसमें दिखा now how about some romantic stuff and in fact we are going to talk about one of the newer songs to start with और जो काफ़ी पॉपुलर गाना हुआ उस्ताद रशीद खान साहब की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी जब वी मेट और कौन से गाने की बात कर रहा हूँ मैं आओगे जब तुम ओ साजना अंगना फूल खिलेंगे आओ सा ग म
मम ध म ग नि 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 ध प ध म ग म म बरसेगा सावन बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम ओ साजना अंगना फूल खिलेंगे। तो उसका एक अंतरा है, जी नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लय मध्यम चले तो से कहे बरसेगा सावन बरसेगा सावन झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम ओ साजना अंगना फूल खिलेंगे अंगना फूल खिलेंगे अंगना फूल खिलेंगे। Wow. Very nice. Very appropriate lyrics by Irshad Kamil साहब जी बिल्कुल इरशाद कामिल साहब जी एंड आई थिंक प्रीतम जी का म्यूजिक है शायद। हाँ पर इस गाने में apparently संदेश शांडिल्य का नाम लिखा है ओ ओ संदेश शांडिल्य या नहीं नहीं you're right जी you're तो right they I think both collaborated the same film supplement so okay okay yeah okay yeah are two films yeah जी okay so now एक जो गाना जिसके बारे में मैंने पंकज जी से बात नहीं की थी सो लेट्स सी अगर आपने ये गाना सुना हो ये एक्चुअली नॉन फिल्मी है शफकत अमानत अली खान साहब का गाया हुआ काफ़ी पॉपुलर हुआ था एक्चुअली एंड आई बिलीव कि इस गाने की वजह से ही उनको फिल्म कभी अलविदा ना कहना में ब्रेक मिला था शंकर महादेवन जी ने सुना और यू नो दैट्स हाउ ही गॉट द ब्रेक एंड वो गाना है सावन भी तो जाए पियरवा सावन भी तो जाए पियरवा मन मोरा घबराए मन मोरा घबराए सो गए परदेस पिया तुम ऐसो गए परदेस पिया तुम चैन हमें नहीं आए चैन हमें नहीं आए मोरा सैया मुँह से बोले ना मोरा सैया मुँह से बोले ना मैं लाख जतन कर हारी लाख जतन कर हार रही मोरा सैया मुँह से बोले ना मोरा सैया मुँह से बोले ना। वाह देखिए या जी apparently this was included in the film Hyderabad Blues 2 much later probably अच्छा it was oh okay I जी see yeah अच्छा very nice yes. okay okay and then in Kabhi Alvida Na Kehna he sang in Rag Khamaj right हाँ वो खमाज में था मितुआ जी जो उनका गाना था यस यस या करेक्ट एब्सोल्युटली नेक्स्ट तो हाँ अभी एक और एक जो मूवी आई थी शागिर्द oh yes yes तो उसमें एक जो गाना भक्ति गीत है वो and Janmashtami is also on the corner so but उसी मूवी में
there is a romantic song also, which is Yes. also in Manch Kamaj. Oh, okay, 2 songs. Okay. And the song, so सबसे पहले वो romantic गाना गाते हैं. जी. दिल विल प्यार व्यार मैं अरे वाह. क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल विल प्यार व्यार. देखिए पूरा वो बदल गया. देखिए मुझे पूरा इमेजिनेशन में रात मांग कमाल. क्या बात है. हाँ, क्या बात है. पूरा ये मांच का फील है. देखिए वाह. हाँ, जी. ना 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 दिल विल प्यार व्यार. तो या तो वो, and the more popular song, the devotional song that I was talking about, बहुत ही खूबसूरत मेलोडियस गाना. कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, मोहे चाकर समझ निहार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार, कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार. क्या बात है. मनोज एक फुटनोट ऐड करना पड़ेगा. आपने जो गाना गाया तो मुझे याद आ गया. अभी जो इंडियन आइडल का जो नेक्स्ट अभी 12th सीजन खत्म हुआ तो उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी में से प्यारेलाल जी आए थे सेट जी. पे. उनके सामने हाँ. एक कंटेस्टेंट ने यही गाना गाया. अरे वाह वाह वाह. एंड ओके. प्यारेलाल जी लाइव करेक्टेड हर. अरे इतना मत स्ट्रेच करो इसको, उसकी स्वीटनेस को बरकरार रखो. सो हम्बली. अच्छा अच्छा. He was अरे वाह encouraging the वाह वाह. singer, but this was the song. So thank you for reminding us. वाह 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 Amazing. प्यारेलाल वाह जी को देखना स्क्रीन पे और सिखाना. वाह. तो देखना एक अनुभव. वाह. जी जी. Yeah. Next. Well, he was an Yes. amazing violinist. So Yes, yes. yeah. So सारा बानो और आईएस जौहर और जॉय उठ जी जाती जी है. जी. वाह वाह. तो एक और पुरानी मूवी का गाना है जी. जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये राग काइंड ऑफ मूवीज में आया. Yes, yes. एंड द मूवी दैट वी टॉकिंग अबाउट Classic. इज Yes, yes. हाँ अनुराधा. Yes. म्यूजिक बाय पंडित रविशंकर जी. लाइक आई सेड एट द बिगिनिंग, पंडित रविशंकर जी के गुरु अलाउद्दीन खान साहब, उन्होंने इस राग की इजाद की. जी. तो पंडित रविशंकर जी ने इतना खूबसूरत उसमें मांझ खमाज पर आधारित गाना इसमें कंपोज किया है. एंड द सॉन्ग गोज, कैसे दिन बीते कैसे बीती रतिया, जिया जाने ना है, कैसे दिन बीते कैसे बीती रतिया, जिया जाने पिया जाने ना. पिया जाने ना. I think it is पिया. Yes. पिया जाने ना. Yes. My mistake. Yeah. So it is पिया जाने. Yeah. कैसे दिन बीते कैसे बीती रतिया, पिया जाने ना है, कैसे दिन. देखिए कितना खूबसूरत. कितना अच्छा आप कर रहे हैं. लता जी की आवाज को इतना अच्छे से निभा रहे हैं. माय गॉड. वाह. और उसके अंतरे में मेरे ख्याल से वो नेहा लगाए मैं पछताई, नेहा लगाए मैं पछताई, सारी सारी रहना निंदिया ना आई, ना जान के देखो मैं जी की बत्तियां, जिया जाने ना है, कैसे दिन. वंडरफुल. वेरी वेरी अमेजिंग. कितना मेलोडियस कर दिया आपने लता जी की वॉइस को. निभाना कितना चैलेंजिंग है. और थोड़ा इसमें मुझे बोलना पड़ेगा मनोज जी, इस गाने में एक्चुअली लिरिक्स शरद जी के लिखे हुए हैं. और इसमें पूरी फिल्म की समरी है फिलॉसफी की. फिल्म की जो फिलॉसफी थी ना, उसमें जो हीरोइन है वो बहुत रिनाउंड डांसर या सिंगर थी. जी She sacrifices her career for her doctor husband. Doctor husband has no clue what his wife is missing. The whole film की summary is lyrics. Amazing.
अमेजिंग फिल्म, अमेजिंग लिरिक्स, अमेजिंग फिल्म है ऋषिकेश मुखर्जी जो बिमल रॉय अच्छा। के डिसाइपल जैसे थे, बिमल जी रॉय जी के जी अप्रेंटिस बिल्कुल। थे। और जी। ऋषि ने फिल्म बनाई थी, अमेजिंग फिल्म, हाँ, मस्ट सी अनुराधा। फिल्म फॉर एवरीबॉडी, एंड all नहीं, एंड feminists, यू नो, and all feminists must see this proto feminist film। जब long back, जब फीमेल्स नहीं होती थी लीड स्टार, तब अनुराधा फिल्म जैसी जी, फिल्म बना के हमारे देश में amazing। राइट राइट। एंड आई थिंक मैं कई बार लोगों से सुनता हूँ कि भाई ये गाने हमने सुने नहीं थे, तो कभी कभी हम एपिसोड्स के साथ रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो मेरी उनसे ये विनती है कि ये गाने सुने, यू नो। सी द होल आइडिया ऑफ डूइंग दीज एपिसोड्स इज एग्जैक्टली दिस, दैट बिसाइड्स टेलिंग पीपल अबाउट राग्स, एंड वो तो सब ठीक है कि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे राग और हमारा ये संगीत जुड़ा हुआ है, मगर उसके साथ साथ कई सारे ऐसे गाने हम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं जो शायद आपने सुने नहीं हो। तो मेरी ये फिर से विनती है सबसे कि इसी बहाने उन गानों को सुने, है ना, ताकि ये हमारी एक कॉमन एक मेंटल टेंडेंसी होती है कि भाई अगर सुने नहीं है तो यार मज़ा नहीं आया, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हमको सुनना चाहिए, है ना। तो मे बी मेरे गाने की वजह से नहीं, मगर आपने अगर ओरिजिनल गाना सुना तो प्रॉब्ली यू माइट लाइक दैट सॉन्ग, यू नो। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट you listen to these songs so that you know where the roots are of all these songs. And see, this is how uh, we get introduced to new songs, and कई सारे गानों के बारे में हमें फिर मालूमात हो जाती है, बात पता चल जाती है हमको, तो मैंने उसकी एक वजह और से ये वर्ड सारे नए गाने सुनना। जी, मैंने एक और वर्ड जी नया सीखा रिसेंटली, वो है जैसे IQ होती इंटेलिजेंस क्वोशंट, जैसे EQ होती इमोशनल क्वोशंट, वैसे इमोशनल एक क्वेश्चन। म्यूजिकल जी क्वोशंट भी होती है। So these new जी songs when we add to our mind, it increases जी our musical quotient, it develops new जी neural network, I would say। So जी and it's जी part of our great heritage। कितनी मेहनत की हमारे जीनियसेस, पंडित जी रविशंकर जैसे जीनियसेस जो भारत जी रत्न जी रहे हैं, बिल्कुल। उनका संगीत अगर हमने नहीं सुना तो हम भारतीय कहलाने लगे। विदेशी उनके पीछे पागल थे, अमेरिका के लीड स्टार जी थे, बिल्कुल और हम इंडिया से नहीं सुना पंडित बिल्कुल रविशंकर का संगीत। उन्होंने फिल्मों में संगीत दिया, हमको पता ही, हमने सुना ही तो फिर क्या किया। How do we बिल्कुल call this? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जी, सो दैट इज, या दैट्स द पॉइंट एग्जैक्टली। एंड चलते चलते एक फिलोसॉफिकल, एक बहुत ही Please। खूबसूरत मराठी गाना है, अरे गाया है मराठी के लेजेंड सुधीर फड़के साहब ने, उन्हीं का अरे संगीत है। गीतकार हैं दूसरे एक मराठी के लेजेंड जगदीश खेबुड़कर जी, जिनको मैं काइंड ऑफ मराठी का मजरू सुल्तानपुरी मानता हूँ क्योंकि सारे जनरेशन के साथ उन्होंने काम किया हमने और एक्चुअली सब तरह के गाने लिखे। मजनू साहब के 2 गाने गाए आपने आज शागिर्द फिल्म के। बिल्कुल जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आराम हराम आहे ऐसी एक मूवी आई थी मराठी में, उस मूवी का गाना है ये। और ये फिलोसॉफिकल गाना है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि पंछी आकाश में उड़ान लो, आकाशी झेप घेरे पाखरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा। ये जो सोने के पिंजरे में हम बंधे हुए हैं या अटके हुए हैं, उसको छोड़ो और उड़ान लगाओ आकाश में। समथिंग वेरी सिमिलर टू व्हाट वी स्पोक जस्ट नाउ, राइट, कि हम लोग हमारे पर्टिकुलर जो गाने सुने हुए होते हैं उन्हीं को सुन के उन्हीं को पकड़ के बैठे रहते हैं और एक्सप्लोर नहीं करते हम। तो दिस एग्जैक्टली कन्वेज द सेम मैसेज, दिस सॉन्ग। आकाशी झेप घेरे पाखरा, आकाशी झेप घेरे पाखरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा। एक अंतरा गाते हैं बहुत ही खूबसूरत। तुझ भवती वैभव माया, फळ रसाळ मिळते खाया, तुझ भवती वैभव माया, फळ रसाळ मिळते खाया, सुख लोलुप झाली काया,
हा कुठवर वेड्या घेसी आसरा सोडी सोन्याचा पिंजरा सोडी सोन्याचा पिंजरा. तो ये मराठी गीतों के लिरिक्स कितने इंस्पायरिंग, एकदम स्फूर्तिदायक गीत होते हैं मराठी में. इनफैक्ट एक्चुअली इसी राग पर सुधीर फड़के जी का एक और अभी एक गाना मुझे याद आ गया. अरे क्या बात है. हाँ, तो वो तो एकदम मराठी में घर घर में पॉपुलर है. और अरे वो गाना है वाह. फिरत्या चाकावरती देसी मातीला आकार विठ्ठला तू वेडा कुंभार विठ्ठला तू वेडा कुंभार. एंड आई थिंक कोइंसिडेंटली ये गाना भी जगदीश केबुड़कर साहब का ही लिखा हुआ है. अरे कि कितना खूबसूरत उन्होंने लिखा कि देखिए फिरत्या चाकावरती देसी मातीला आकार, यानी कि उन्होंने जो हम इंसान हैं उनको मिट्टी से कंपेयर किया हुआ है. और वो कहते हैं कि विठ्ठला भगवान तुम जो है वो उस मिट्टी को जो है वो बना रहे हो. तुम जैसा पागल कुम्हार जो है वो कोई है ही नहीं. विठ्ठला तू वेड़ा कुम्हार, यानी कि तुम जैसा कोई कुम्हार है ही नहीं कि जो हमारे पूरे इंसान रूपी मिट्टी को जो बना रहा है ना, हमको वो जैसे घड़ रहा है. विठल. तो हाँ जी. ये फिल्म से है दोनों नहीं, या नॉन फिल्म? ये नहीं अच्छा ये भी किसी मूवी का ही है मेरे ख्याल से. यस. हाँ. I'm amazed, मनोज जी. आप तो मुझे पता है मुंबई में आप born and grew up probably in Mumbai, but मलयालम is your मातृभाषा. आप इतने सारे मराठी गाने कैसे आपको वाओ. नहीं, क्योंकि मैं मराठी मतलब मेरा जो जुड़ाव है वो मराठी लोगों के साथ ही रहा है संगीत के चलते. तो इनफैक्ट मुझे मलयालम गाने कम आते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि सुनना नहीं हुआ है. मलयालम गाने कम सुने हुए हैं. अच्छा, आपकी गुरु भी शायद महाराष्ट्र मराठी थे इसलिए. हाँ महाराष्ट्र. हाँ क्योंकि हिंदुस्तानी म्यूजिक सीखता था जी. तो पूरा हमारा जो कनेक्शन है हैज ऑलवेज बीन विद महाराष्ट्रियंस. अच्छा. एंड जिस तरह से वो लोग म्यूजिक को अप्रिशिएट करते हैं, इट इज जस्ट सो अमेजिंग, राइट? सो या महाराष्ट्र एंड बंगाल we call it two fortresses of Hindustani music. Two pillars of Hindustani music. बिल्कुल. Pillars एकदम. So yeah, तो उसकी वजह से इनफैक्ट देखिए एक और सुधीर फड़के जी का, और ये भी एक्चुअली ये भक्ति गीत है. विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊली त मूर्ती विठ्ठलाची विठ्ठला माय बापा विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊली त मूर्ती विठ्ठलाची. देखिए ये भी मांझ का मांझ है. क्या बात है. कितना स्वीट, बहुत स्वीटनेस बहुत ज्यादा है मांझ का मांझ में. स्वीटनेस क्वेश्चन बहुत ज्यादा. यस बिल्कुल. बहुत ही ये मीठा राग है एक्चुअली. और इतने अमेजिंगली इसकी इजाद की है बाबा अलाउद्दीन खान साहब ने. क्या सोच है, देखिए कितने महान कलाकार और कैसी सोच है. I guess interestingly I had a misconception. I thought Khamaj had been favored with Barman Dada and Pancham Da, S.D. Barman and R.D. Barman. पर आज हमने एक भी बर्मन का नहीं गाया, तो मांझ खमाज उतना फेवरेट नहीं रहा apparently उनका जितना खमाज रहा है. I guess. Yes. एक भी मिला नहीं हमको, एक भी उनका बर्मन का मिला नहीं. जी शायद होंगे. आई एम श्योर कि होंगे, क्योंकि ये काफी पॉपुलर धुन है. ये बेसिकली इट्स सेमी क्लासिकल राग, राइट? जी. सो इट्स लाइक अ धुन बेस्ड, a folk based rag. So I'm sure lots of the listeners who are listening to this might come up with some nice questions, some songs, and yeah, काफी सारे comments भी अभी आने लगे हैं YouTube पर, so that's great to see. You know, so yeah, so keep up these comments, friends, and it was so enjoyable to bring you this episode of Manj Khamaj, episode number 48. We are closing in on 50, number 50. Half century. Yes. So, and of course, it's all because of your encouragement, friends, and your
constant listening and your viewership. So please do continue your support and encouragement, and stay safe. And again, happy Raksha Bandhan and happy Janmashtami, happy festival season. काफ़ी सारे festivals अभी आ रहे हैं, तो उन सभी की मुबारकबाद आप सभी को. And we shall continue our fun next week. And Pankaj ji, to you and all the listeners, नमस्कार. namaskar. Namaskar. नमस्कार.